Hello everyone. कैसे हो सब लोग? And how many of you completed the exercise given? Hello. How many of you completed? Please mention in the chat. Karthik, did you receive any Word documents from the team No, sir. in the group? Because they are mentioning that they are sending in one common group whatever we are having on the group. And do we have any files shared by these people? இல்லை சார் ஒரே இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் அனுப்புகிறாங்க. Last week we have given one exercise. Okay, for that we ask everyone to almost 15-16 are there, and I Okay. asked to submit in the group. Okay, if they Okay. submit, no, she's Bharati, I think she has already submitted. Okay. Whoever submit the exercise, no, I myself and Sony ma'am, we want that particular files to review and give the feedback to Shiva sir. Okay. Okay. Okay, ఏదైనా ఫైల్ వందచ్చిన just share to us. Okay, sir. Okay, okay, thanks. Okay. Yeah. Okay. Yes, today we are going to see one more topic called project status report, or the status report, project status report. It can be applicable everywhere. It can be applicable in IT, or it can be applicable applicable in any of the organization, or it can be applicable to retail retail industry, or it can be even applicable to real estate. It can be even applicable to the schools. Schools में अगर बच्चे लोगों का हर महीने कुछ ना कुछ एग्जाम्स, they will be having their unit test. After that they will be having their quarterly examination, and after that they will have half yearly examination, and after half yearly again they will be having their final examination. So for every exam they will teachers will share the marks of the student. So that marks also we can consider that as a status report of that particular student in that in that particular month, or in that particular quarter for that particular exam. So if you take any of the project status report, no, we can call this as I have mentioned a definition. Okay, project status is a document describe the progress of the project within a specific time period and compares it against the project plan. कैसा रहता है right? हमारा if we take any real estate project, in that real estate project, what they will do, they will give a deadline of 1 year or 2 years for the completion of that entire building. So every 15 days they will cross check. Okay, are we there as per our schedule or not? So and where they were, they will make a documentation and they will submit to their managers that as on date we need to be here and we are in par. Sometimes what will happen, if because of corona and other cases, if at all any delay, there might be n number of reasons. Suddenly a cyclone can come. Suddenly
suddenly heavy rains might come, suddenly earthquake might come, suddenly there might be a scarcity of if you take the real estate, suddenly there might be heavy rains, because of which they could not able to work in the plot. In those times what will happen is they will go beyond their they will not reach their targets. वो जो भी उनका target है वो they could not able to achieve. We can say that they are not in par with their project plan. Then they will mention in that project status, the actually we need to be here, but we are only at this particular point because of not having power, or because of not having some sand. In some states, sometimes you will even find a scarcity of stand, scarcity of power, scarcity of the brick, scarcity of the other material, because of which if at all any delay is there, they will mention that. So project plan will always tell you where you stand, where you need to be, and where you stand. This project status every month, organization to organization, it will differ. Some will submit that in daily basis. Some will submit daily, quarterly, monthly, yearly ones also. So this is what the project status, definition of project status. It is a document which will specify where you are on that particular time period. See here, project manager. Project manager means not only IT company, it can be in real estate also. Real estate, there the real estate, who is handling that project, he will see, okay, status of the report, to keep stakeholders. Stakeholders बोले तो कौन कौन है stakeholders? अगर मैं real estate का project लिया तो stakeholder कौन है? वो खुद कंपनी वाले जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, and the customers or the stakeholders. So this project manager will inform the progress of that particular project, how it is going, if at all they require any time and work, cost, risk. Like I have mentioned, if heavy rains are there, there is a risk of delay. So they will highlight that particular risk. And sometimes what will happen, they might even find the scarcity of the labor also. Labor will sometimes, what will happen, the people who works in that real estate, what will happen, they will go to their home locations after 1 year, and some people might come, or some people they tell that no, we are not coming back. Then suddenly what will happen to this particular project? They will find a scarcity of the employees who are working in that particular real estate. So this is what actually status report will have. They will talk about the cost, what is their expectation and what is the cost. Sometime what will happen is they will expect to complete that in 100 crores. Okay, they will estimate for 100 crores. Then suddenly what happened? The government raises the cost of diesel, cost of the brick, cost of the sand, cost of the iron. If everything goes up, automatically what will happen? The cost of this particular project will also get increased. So they will even this status report will even help the project managers to have an idea of the cost, risk, and all this. Okay. And even this project report, if they want to have in graphs and charts, they will take. See, in Excel we have seen, right? We will be having some data. Using that data, this project manager who works in that real estate, no, they will make some graphs and some charts, and they will show to the
to the stakeholders or to their management. These many actually in this apartment we are planning to construct 1,000 apartments, and in these 1,000 apartments, in the first week we completed around 50. In the first month we could able to complete some 100. In the fourth month we could able to complete another 50, like that. Week wise they will maintain a graph, and they will show to their management. That is also one of the important step in this particular status report. See, and whatever this status report is there, this will be taken repeatedly throughout the project. Means पहले दिन से लास्ट दिन तक ये प्रोजेक्ट में हर टाइम पे they will decide whether we need to sit on daily basis or weekly basis or even monthly basis. So every if they decide that okay, monthly one time we'll discuss, sorry, weekly one time we'll discuss, then weekly they will see the status, and they will send the status report to the management. This week's performance, this week performance, this week performance. एंड ये स्टेटस रिपोर्ट नहीं बोल सकते, बट अगर कोई हॉस्पिटल में ज्वाइन हुआ तो हर रोज डॉक्टर आके देखते रहते, राइट? ओके, आज का स्टेटस, पेशेंट का स्टेटस क्या है, आज का स्टेटस क्या है। वो पेशेंट ज्वाइन होने से पेशेंट डिस्चार्ज होने तक हर रोज पेशेंट का स्टेटस देखते हैं। वो भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, नहीं तो रियल एस्टेट का और एक एग्जाम्पल ले सकते हो, नहीं तो रिटेल इंडस्ट्री, एक सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट में भी ये इन्वेंटरी का भी स्टेटस एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, हाउ मच इन्वेंटरी इज देयर विथ अस, and how much it is left. If they want to have a status of that particular status report of the inventory, then they can go with the inventory also. Kuch bhi kam, whatever work you take, okay, for that reporting is must. Reporting is must. But in when we talk about in organization level pe, we have some different formats, and we follow those formats. Okay, अगर अगर एक घरेलू का एग्जाम्पल अगर आप लिए, तो आप आपका हस्बैंड को एक काम के लिए बोलते हो। ओके, आपका हस्बैंड को नेक्स्ट 4-5 दिन में हमको ये काम करवाना बोल के आप 10 काम आप आपका हस्बैंड को बोलते हो। एंड शाम शाम वो आपका हस्बैंड आने के बाद आप पूछते हो, ओके, आज क्या काम किए थे, कितना काम पेंडिंग है, उसमें आपको मेरा मदद चाहिए क्या। वैसा आपका हस्बैंड डिस्कस करते, राइट? आप अगर कुछ 10 काम नहीं तो 4 काम एक महीने के लिए अगर आप लिए, तो आप घर में भी डिस्कस करते। ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं रहता, ओनली हम उसके लिए हमारा जुबान यूज कर लेते हैं। आप क्या हो, कहाँ पे हो, नहीं तो आजकल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे एक बार आपका हस्बैंड अगर पूरा ऑफिस का काम पे बिजी है, तो आप एक बार कॉल करके रिमाइंड करते हो, नहीं तो व्हाट्सएप कर लेते हो, क्या स्टेटस है, कहाँ पे कहाँ तक काम हुआ, हमको ये नेक्स्ट 2 दिन में ये काम करवाना। घर में एक शादी का ये शादी होने वाला है, शादी का कुछ बातें हो गया, शादी का आप शादी करना घर में, व्हाट आर द स्टेप्स यू नीड टू हैव उसमें। पहले मंडप देखने का, बच्चा बच्ची दोनों है, एंड आप अगर लड़की के साइड से है, नहीं तो लड़के के साइड से, जो भी साइड से है, आप अगर आप
मंडप देखने का, पुजारी देखने का, मंडप में कलरिंग, मंडप में फूल देखने का, मंडप डिजाइन देखने का, खाना खाना बनाने के लिए कितने लोगों को खाना बनाना, देन नेक्स्ट वेडिंग कार्ड्स बनाना। ऐसा आपके पास कुछ 20-30 काम रहते हैं। वो 20-30 काम एक पेपर में आप आपका फैमिली पूरा पूरा मिलके एक पेपर में लिख के, उसके बाद हर वीक नहीं तो 2-3 दिन के बाद आप लोग, हाँ मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया बोल के बोलते, राइट। वो एक शादी का भी एक आप प्रोजेक्ट ही ले लो, शादी का प्रोजेक्ट है, एंड वो शादी का प्रोजेक्ट में इतने काम है, एंड ये काम इसको इसको सौंपा दिया गया। एंड कौन कौन सा काम कंप्लीट किया, उसका स्टेटस क्या है, वो सब आप देखते हो, राइट। वो भी एक प्रोजेक्ट है, उसमें भी यही काम करते हो आप, यही काम सब मैंने यहाँ पे लिखा था, सब वही काम करते हो। मंडप बनाना, मंडप में डेकोरेशन होना बोले तो आप लड़की और लड़की का साइड दोनों दोनों भी डिस्कस करके वो मंडप कैसा रहना, मंडप के पीछे कौन सा भगवान को रखना, मंडप पे कौन सा फूल से माला बनाना, कौन सा पुजारी को लेकर आना, शादी पहले कितने दिन का करना, ब्रेकफास्ट में क्या रहना, लंच में क्या रहना, अगर डिनर है तो उसमें क्या रहना, कितने लोगों को कपड़े देना, साड़ी कितना खरीदना, नहीं तो ये पंजाबी ड्रेस जो बोलते हैं, राइट, वो कितने खरीदना, बच्चे लोग कितने रहते हैं, बच्चे लोगों का ड्रेस कितना खरीदना। वो बड़ा सा प्रोजेक्ट, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जैसा ही है, एक शादी करना। ओके, ये सब स्टेप्स रहते, राइट, शादी के भी। आप वहां पे भी आप एग्जाम्पल वही ले लो, आप वही लेके, इफ पॉसिबल आप शादी का प्रोजेक्ट ही लेके उसमें हु आर द स्टेक होल्डर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ task you will be, who will be handling which task, what is the schedule of that, बोल के आप खुद एक प्रोजेक्ट लिख लीजिए, हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा। एंड देखिए, ये रिपीटेड टास्क है, प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट, ये रिपीटेड टास्क है। शादी कंप्लीट होके लड़की को उनका ससुराल भेजने तक ये काम, हर एक चीज रहते ही रहेगा। ओके, वो आप लड़की को वहां पे भेज के कौन सा उनका ससुराल के घर अलविदा दे के आप मंडप को आके सब लोगों को पैसा आपको देना पड़ेगा, राइट। वो सब पैसा जो भी पेमेंट्स जो भी है वो करने का, तब तक आपका काम रिपीटेडली हर एक टाइम होते ही रहेगा। ओके, दैट इज एक्चुअली द प्रोजेक्ट स्टेटस। आप ये प्रोजेक्ट स्टेटस में लिख भी देते हो, अगर कुछ किसी लोगों को पैसा देना है बोले तो यू विल इवन राइट, ओके इतना पैसा है, मंडप के लिए इतना पैसा है, बेसिक इनिशियल पेमेंट मैंने इतना किया था, इस दिन इतना दिया था, एंड शादी के बाद मेरे को इतना पे करने का है, बल्कि आप पूरा लिखते हो, राइट। वही ये प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है, सब इसी में है। देखिए, द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर आप देखें तो उसमें यही होगा। द वर्क दैट्स बीन कंप्लीटेड, कितना काम कंप्लीट हो गया, कितना काम कंप्लीट हो गया, समरी ऑफ द प्लान फॉर व्हाट विल फॉलो, कौन सा काम, कितने लोगों का डिनर बनवाना, यस यस यू आर राइट साधना। ओके, एंड रिस्क, रिस्क क्या है, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ एक्शन, शादी के लिए व्हाट आर द लिस्ट ऑफ एक्शन, व्हाट इज द समरी, बजट कितना होगा, कितने दिन का काम करना। ओके, आप मंडप पे, ओके मंडप के लिए आप बात कर लिया, और मंडप के लिए आप पैसा भी दे दिया, बट आप फंक्शन हॉल ही सेलेक्ट नहीं किया, तो मंडप वालों को पैसा दे के क्या यूज है। सो लिस्ट ऑफ एक्शंस, कौन सा काम के बाद कौन सा काम आएगा, कौन सा काम के
बाद कौन सा काम आएगा। ये सब काम किया। ओके, अभी अभी ठीक है, ये सब मैं पूरा अरेंजमेंट्स कर लेता हूँ। अभी मैं लड़की के लिए लड़का ढूंढने के लिए निकलता हूँ। वैसा बोलेगा कोई? मंडप का प्रिपरेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रिपरेशन हो गया, खाने किसको हो गया। ओके, खाना शादी के लिए किनको बुलाना वो भी आप लिस्ट प्रिपेयर कर दिया। ओके, पूरा एक बुक का लिस्ट मेरे पास प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ लड़की को लड़का ढूंढने के लिए। विल एनीवन डू लाइक दैट? बेबी शाह, कोई ऐसा करेगा? लोग हम पे, हमारे ऊपर हंसेगा, नहीं तो हमको पागल खाने भेज देगा डायरेक्टली। ये कोई पागल आदमी आ गया बोल के। राइट। पहला चीज क्या है? पहले आप लड़की लड़की के लिए लड़का ढूंढना, लड़का के लिए लड़की ढूंढना, वो फाइनल होना। उसके बाद एंगेजमेंट हुआ तो वो एंगेजमेंट होना। उसके बाद ही शादी का मंडप का, शादी का डेट का वो सब आएगा। राइट। दोज आर दी लिस्ट ऑफ एक्शंस। लिस्ट ऑफ एक्शंस। ओके, एनी इश्यूज और रिस्क, व्हाट्स बीइंग डन अबाउट दम। आप शादी का, आप शादी के लिए मंडप रेडी कर दिया। ओके, शादी के लिए डेट भी फिक्स कर लिया। 3-4 महीने पहले शादी के लिए मंडप रेडी कर दिया, शादी के लिए दोनों साइड हाँ बोल दिया। एंड गवर्नमेंट डिक्लेयर किया कि उसी दिन इलेक्शन है आपका, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्या करेगा अब? क्या करेगा? ये इलेक्शन है बोल के जो भी आपका आप पेमेंट्स और सब दिए थे शादी के लिए, मंडप के लिए एडवांस किए थे, शादी पोस्टपोन कर लेगा। गुड, गुड ज्योति। आप अपना वोट डालने के लिए शादी भी पोस्टपोन करने को प्लान कर रहे हो? इसके लिए ये टाल देगा। आप भी ताल ही देगा, पोस्टपोन कर लेगा। मैं तो वैसा नहीं बोलूंगा। ओके, शादी का मुहूर्त देखिए, ये मुहूर्त अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ये मुहूर्त अच्छा है। ये दोनों लड़का और लड़की के लिए उनका जन्म कुंडली देखते हैं एंड उनका मुहूर्त उसके हिसाब से ही मुहूर्त लगाते। राइट। ये मुहूर्त अगर हम टाल दिया तो 6 महीने के बाद नया शादी का दिन, नया मुहूर्त है बोले तो तब क्या करेगा? पोस्टपोन करेगा, नहीं तो टाल देगा, नहीं तो शादी के लिए आगे बढ़ जाएगा। यस। वो टाइम पे उसी उसी इश्यूज को हम इश्यूज नहीं तो रिस्क बोलते हैं। ऐसा रिस्क कभी कभी अचानक सही आ जाते हैं जिंदगी में। हाउ विल रिस्पॉन्ड टू दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। सिंपल शादी, सिंपल सा शादी, उसके लिए सिंपल शादी करने की भी जरूरी नहीं है। अगर आपका एरिया में अगर पोल लगा दिया गया एंड आपका आजू बाजू रिलेटिव्स, रिलेटिव्स तो डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट जगह से आते, राइट। उन लोगों को आने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आजू बाजू जो भी है, आजू बाजू लोग वो वोट डाल के भी आ सकते, नहीं तो शादी में रह के खाना खा के भी जाके वोट डाल सकते हैं। ओके। अगर आने का चांसेस नहीं है, कुछ 10% लोग, 10% लोग शादी के लिए आ नहीं पाया। इफ 90% आर ओके टू कम फॉर दिस शादी, देन हमको शादी के लिए आगे बढ़ना ही चाहिए। एंड अचानक से वो दामाद जो भी है वो भी वो एरिया का पॉलिटिशियन है एंड अचानक उसको गवर्नमेंट ने लोकल लोकल पार्टी जो भी है वो लोकल पार्टी उनको वो एरिया का एमएलए के लिए खड़ा कर दिया, तब कुछ नहीं कर सकते। शादी तो टालना ही पड़ेगा तब।
उतना इम्पोर्टेंट चीज अगर हो गया। एंड कभी कभी क्या हो जाता, अम, शादी के कुछ कुछ 5 दिन 10 दिन में घर में इधर नहीं तो उधर घर में कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली गुजर भी गया। देन क्या करते, शादी रोकना ही पड़ेगा। अगर वो शादी वैसा वैसा सिचुएशंस आप हमारा कंट्रोल से बाहर हो गया तो तब तब पोस्टपोनमेंट ही ऑप्शन है। ऑल दीज आर द रिस्क। क्या क्या रिस्क हो सकता, उसके लिए हमको पहले प्रिपेयर होना। वैसा ही यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टेटस जब भी लिखते हैं, तब सब पॉइंट्स लिखते हैं। यस। हम बट ये चीज जो भी है शादी के लिए हम लिखने के टाइम कौन मर सकता बोल के नहीं लिख सकते, राइट। शादी के जाने के टाइम सब अच्छा ही होना चाहिए, सब सब लोग 100 साल जिए। वैसे ही शादी के लिए हम आगे ही सोचते, विल नॉट थिंक एटलीस्ट कोई मर जाएगा, मरे तो क्या करना, वो सब नहीं देखते। बट इन रियल टाइम प्रोजेक्ट अगर एक रियल एस्टेट का बिल्डिंग बना रहे, तब चेन्नई में कुछ एरिया में वो अपार्टमेंट बना रहे। ये अपार्टमेंट बनाने के टाइम दे विल इवन हाईलाइट जनवरी दिसंबर नहीं तो नवंबर में बाढ़ आने का चांसेस आजकल चेन्नई में बहुत ज्यादा है। अगर बाढ़ आ गया तो देर इज ए चांस दैट कुछ कुछ हफ्ते के लिए काम नहीं हो पाएगा। तब हमको क्या करना, ओके बाढ़ आ गया तो हम बाहर का काम नहीं कर सकते। तब अगर कुछ वो टाइम तक अगर हम पूरा पूरा बिल्डिंग का थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कर दिया तो इंटरनली 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 ये वायरिंग का काम वो रहता है, राइट। ओके ठीक है, बाहर बारिश आ रहा है एंड बाहर का काम नहीं कर सकते। सो हम टाइल्स अंदर टाइल्स डालना, नहीं तो अंदर हमारा ये टैप फिक्स करना, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का काम करना। वैसा कुछ प्लान किए तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वो काम होते रह जाएगा। कोई कुछ कहा यहाँ पे, किसी के डेथ पर तो पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। किसी का ये जब बोले तो क्या है, किसी का जब लगना, ये जब क्या होता मेरे को पता नहीं। ओ जॉब लगना, किसी का जॉब लगे तो शादी के लिए क्या प्रॉब्लम होगा। ओके ठीक है, कमिंग बैक टू आवर अगेन प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम ऑलरेडी इसका डिस्कस किए थे, व्हाट नीड टू बी कंप्लीट, व्हाट आर दी। ये एक्चुअली हम अभी देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप देखें तो इट प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। ये लास्ट 1 ईयर में क्या क्या हुआ है वो पूरा पहले से एंड तक आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा। ये काम किया था, ये काम से पेंडिंग है। एंड ये लिखने के टाइम हमको बॉटिल नेक्स यू कैन ऐसा लिखे तो हम बॉटिल नेक बोले तो नो प्रॉब्लम सर, ओके। बॉटिल नेक नहीं तो मिस स्टेप्स। बॉटिल नेक बोले तो क्या है ना, कुछ आपको आगे आगे जाने के लिए कुछ चांसेस ही नहीं है। वैसा सिचुएशंस हम पहले से ही प्रिपेयर करके रहे तो वैसा सिचुएशंस हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसा मैं बोला था रियल एस्टेट में जनवरी फरवरी, अगर अगर आप यूपी नहीं तो दिल्ली का लिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जून जुलाई में बहुत बड़ा बारिश आने का है। ओके, ये बारिश आने के टाइम इतने दिन के लिए बारिश जनरली आएगा, सो इतना दिन के लिए काम काम रुक जाएगा।
सो ये रुकने के टाइम अगर वो टाइम तक मैं कुछ एटलीस्ट कुछ बिल्डिंग्स का काम कंप्लीट कर दिया तो मैं वो बिल्डिंग्स में प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिसिटी वर्क, टाइल्स वर्क ये काम चला सकता हूँ। एटलीस्ट मैं कुछ लोगों को घर हैंड ओवर कर देता हूँ, फेस बाय फेस मैं घर हैंड ओवर कर लेता हूँ। वैसा मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा बोले तो पुराना पुराना डेटा, लास्ट ईयर क्या हुआ, उसके लास्ट ईयर क्या हुआ, वो वो डेटा से हम प्लान कर सकते हैं। और क्या है, पर्पस भी यहाँ पे दिया गया है, देखिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट? दे आर सेवरल रीजंस यहाँ पे भी ये यहाँ पे दिया था। यहाँ पे दिया, देखिए। ये प्रोजेक्ट ट्रैक कर सकते, ओके, क्या कॉस्ट हुआ था, कितना कॉस्ट हुआ और कितना काम पेंडिंग है, वो हम ट्रैक कर सकते हैं। एंड फोरकास्ट भी कर सकते। फोरकास्ट बोले तो आगे क्या होगा बोल के हम देख सकते। ओके, अब तक हमारा इतना पैसा खर्च हो गया, एंड इतना इतना काम हो गया, इतना पैसा खर्च हो गया। सो आगे हमको कितना पैसा चाहिए एंड कितना टाइम चाहिए बोल के हम प्रेडिक्ट कर सकते आगे देख के। ओके, नेक्स्ट 1 वीक में 10 डेज में ये काम हो जाएगा बोल के। देन नेक्स्ट, ये तो ठीक है। एंड स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म्ड, हम मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर्स को बोल सकते हैं, ओके, एज एज हमने कमिट एज वी हैव कमिटेड, वी आर गोइंग टू डिलीवर द हाउस by December 2024 or May 2024. As of now, this is the status of this work. So it is going with our expected timelines. So by December 2024, we are going to deliver one portion of the houses. वैसा हम स्टेक होल्डर बोले तो हमारा प्रोजेक्ट, हमारा बॉस जो भी रहते हैं, वो बिल्डर जो भी रहते हैं उनको इन्फॉर्म कर सकते। वैसा ही हम कस्टमर को भी बोल सकते, एज वी हैव कमिटेड बाय December 2024 योर हाउस इज गोइंग टू गेट रेडी, सो प्लीज प्लान अकॉर्डिंगली बोल के कस्टमर को भी हम बोल सकते हैं। एंड ये स्टेटस मीटिंग्स जो भी है, वो स्टेटस मीटिंग्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में रहेगा। डेली स्टेटस, अगर कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है, वो प्रोजेक्ट को डेली रिपोर्ट चाहिए, सो डेली स्टेटस रिपोर्ट, वीकली स्टेटस रिपोर्ट, मंथली स्टेटस रिपोर्ट, क्वार्टरली स्टेटस रिपोर्ट बोले तो हर 3 महीने का रिपोर्ट है। बिल्डर क्या है? बिल्डर बोले तो कौन है, मींस जो अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट, उसको हम बिल्डर बोलते हैं। हमारे अगर चेन्नई में वीजीएन वीजीएन कासा कासा ग्रैंड, देन नेक्स्ट और बहुत है। दीज आर द वेरी वेरी फेमस। आपा स्वामी, दीज आर द बिल्डर्स। बिल्डर्स बोले तो जो अपार्टमेंट को कंस्ट्रक्ट करते, राइट, उन लोगों को हम बिल्डर्स बोलते हैं। ओके, मीटिंग्स जो भी है वो डेली भी हो सकता, वीकली भी हो सकता, मंथली, क्वार्टरली, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मीटिंग वो प्रोजेक्ट के हिसाब से होगा। एंड फाइनली एक और चीज, हाउ टू राइट ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये ठीक है, ये हम परसों का क्लास में देखेंगे। हाउ टू राइट ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हम शादी का ही एक एग्जांपल, नहीं तो रिटेल का एक एग्जांपल लेके हाउ टू राइट ए प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट हम देखते हैं। ओके, 11:40 हो गया, मैडम विल कंटिन्यू मैम्स क्लास। कार्तिक, यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग।